Ladies and gentlemen, welcome back to Doctors. आपके साथ डिस्कशन चल रही है कॉस्मेटिक सर्जरी पर. ब्रेक पे हमने इधर ही नोज जॉब किया था. You missed it. Where were you? Anyways, speaking of nose jobs. जी. अच्छा, मैं अब एक पेशेंट. Why did you point at me? And you, it looked like you were like speaking of. We'll talk about that later. ठीक है. अच्छा. Okay. नहीं, but on a more serious note, ये जो अभी बात कर रहे थे, सब कह रहे हैं, you know, people come and ask कि मुझे क्या कराना चाहिए और आपका क्या. इसका psychological aspects बहुत अहम होते हैं. अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा पेशेंट की, जिस पे वही मैंने किया था nose. She had an excellent result, but was very unhappy. अच्छा. Okay. Because उसकी psychology जो होती है ना, वो पहले this was early on in my career, so to speak. So अब I'm lot more psychologically evaluating कि तो क्यों patient selection बहुत important. Patient selection बहुत important है. This is a lady जिसने कराना था. बाद में पता लगा कि उसकी mother और उसके father और उसके husband पीछे पड़े हुए थे कि अपना नाक की. जरा तस्वीर दिखाएं. Next वाली. तो उसमें तो उनको convince करा लिया था कि इनका nose कराना है. So देखें left पे है इनका पहले. Certainly nose that needed some refinement. Okay, this is after the surgery. कितनी अच्छी nose हो गई इसकी. And looked very fit face, बहुत अच्छा कर रही थी, and it looked very cosmetically appealing, but she was very unhappy. In fact, इतनी unhappy थी कि एक साल पूरा मेरा सर खाया इन्होंने. Eventually मैंने fillers डाल के इनका nose फिर ज़रा बड़ा किया ताकि ज़रा. तो यानी आप you took it back to the. Well, you can't go back to, you know, cosmetic surgery is one-way street. If you don't do it for the right reasons, Lego नहीं है. You can't put. you can't put it. You can't go back. So when कहते हैं it's a one-way street, you have to be sure you're doing this. I mean, मैं day of surgery में surgeries cancel करता हूँ कि बैठ के बात करता हूँ. अगर थोड़ा भी मुझे लगे कि इनका. तो आप जब आप क्या और दूसरी बात मैंने ये पूछना था, आप हिस्ट्री पे कितनी अहमियत देते हैं? हिस्ट्री में एक्चुअली साइकोलॉजिकल हिस्ट्री पे ज्यादा अहमियत देता हूँ, स्पेशली क्या रीजन से करा रहे हैं ना कि क्या अपना बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वगैरह वो वाली चीजें. हाँ, क्यों करा रहे हैं स्पेशली क्योंकि यू नो कईयों का तो मोस्ट कॉमनली तो बहुत जिन्होंने पहले सर्जरी कराई होती है उनका फिगर आउट करना कि इनको बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम होता है कि नोबडी इज एवर हैप्पी विद देयर बॉडी कि नो मैटर क्या किया जाए. तो उसका ये है कि लेकिन उसको evaluate करना से it's more of a psychological history and evaluation कि क्यों करा रहे हैं, especially secondary surgeries. पहले उन्होंने सर्जरी कराई है, वो आपके पास बैठ के रहे हैं, वो सर्जन बहुत बुरा था, उसने ये खराबी की. मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा, let's talk about this a little bit more कि क्या. Just to stop you guys for a second, हमारे पास अभी caller है सनम from रावलपिंडी. अस्सलाम वालेकुम सनम. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी बोलिए please. Go ahead सनम. मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है. Okay, we've got a Sanam. Okay, go ahead. What's your answer? 1 year wait करना चाहिए. 1 year wait करना चाह रही है सनम कह रही. Is that the right? पहली आंसर और पहला correct. Sanam, you got the right answer. Congratulations. Good job, Sanam. ठीक है. So okay, we agreed that the first person to answer correctly would win the product. आपने क्या जवाब गूगल किया था या पता था क्या पहले से? Did you get that Sanam? She's not on the line anymore. जी वो आप पूछ रहे हैं आपने आंसर गूगल से लिया था या you knew this? गूगल से लिया था. Okay, we give you an A for an effort. Effort तो है इसमें तो. नहीं, पर that's a teaching point. Yeah. Exactly. बहुत commonly मेरे पास आते हैं because Sorry, Sanam's still hanging. Are we saying goodbye to Sanam? Yes. Sanam, Okay, how Sanam is has she going won. to contact us? Sanam, you have won. You are a winner. Our producer will contact you. Congratulations to deliver the Lexley products. Thank you so much. Thank you so much for calling, Sanam. That was quick. Very good. Okay, sorry, go ahead. But that's a very important answer because इतनी दफ़ा मेरे पास cosmetic surgery के patients आते हैं, especially face. That's a Very important, especially noses का. Noses तो मैं that's my main thing. Noses के लिए मैं उनको कहता हूँ you don't have enough money in the world to pay me to go in before 1 year and do anything. किसी और ने भी किया हो. And the reason is कि वही tissue handling की बात हुई ना शुरू में. You have to know when the tissues are ready to be remodeled. Right. But इसमें आपने जब जेन फोंडा की तस्वीर दिखाई तो आपने कहा that genetics is very important. तो उस पे आप ज़रा explain करें हमारे नाज़रीन को कि what do you mean by genes? Genetics, genes मतलब आपकी जो genetics आपकी जो traits होते हैं जो माँ बाप
पहले से जो आते हैं, you know how the color of the eyes या hair या looks या उसके बट प्लास्टिक सर्जरी में ये क्या, इसकी क्या रेलेवेंस है? वही मैं बता रहा हूँ, वो उसका ये है कि आपकी wound healing और tissues भी dependent होते हैं how good your genes have made that healing. So some people heal a little faster than others. The average time of tissue जिसे कहते हैं maturation is 1 year in adults in general. Now some will of course be a little earlier, some a little later. But in general, so we have to follow the general principles कि 1 साल से पहले certain things should not be done. That's important information though. नहीं, but also I feel मतलब ये तो आप medically और वो healing के हिसाब से बता रहे हैं, but I think psychologically भी also आपके फेस पे कोई ऐसा चेंज आया है तो इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट यूज्ड टू इट और अंडरस्टैंड कि यू डोंट लाइक इट और यू लाइक इट और व्हाटएवर. That's a very good point. Yes, absolutely. Psychologically also you have to make them wait because are they ready for another change? Yes, yeah. Absolutely. And most commonly मैं ये तो statistically है कि most commonly if you wait long enough most people will settle out. But see, Dr. Ahmed, एक बात भी है कि if you do your nose, जैसे I have contemplated wondering कि मैं अपनी nose job करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, but I'm always worried कि अगर मैं करवाऊँगी तो फिर balance off नहीं हो जाता. But that's I'm sure वो दोनों साइड से कराएंगे. I'm speechless. I'm speechless. अच्छा, बताएं डॉक्टर अहमद. But that's my job. That is what we learn. That's the point of cosmetic surgery. Okay, is you learn के facial harmonics, facial उसके साथ रह के you change जो plastic cost, the change that you bring वो harmony में रहे. बिल्कुल. बट उसमें बहुत यही तो आई गेस दैट्स व्हाट. अच्छा डॉक्टर अहमद, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऐसे कुछ होते हैं जो आप देख सके पहले कुछ अंदाजा हो सके? जो बिफोर आफ्टर दिखाते हैं, फोटोशॉप करते हैं. बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, मैं ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं करता. एंड द रीज़न इज सिंपल. व्हाट द कंप्यूटर जो पिक्सल्स के साथ कंप्यूटर स्पेशली 2 डिमेंशनल में कर सकता है, चांसेस आर कि आपके टिश्यूज़ जो मैं जब मैनिपुलेट टिश्यूज़ करता हूँ, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि मैं इसको यहाँ रखूँगा, हील होके यूँ हो जाएगा या यूँ हो जाएगा. बिल्कुल. कंप्यूटर तो वो नहीं देख सकता ना. एंड सो समटाइम्स द आइडिया गिवन इज नॉट क्वाइट एक्यूरेट. मैनेजिंग योर एक्सपेक्टेशंस, इवन जब हम एस्थेटिक डेंटिस्ट्री करते हैं, वी हैव टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस. I'm sorry to disturb you guys. We have another caller. ये है सायरा from Karachi. Hello, अस्सलाम वालेकुम सायरा. वालेकुम अस्सलाम. जी सायरा. Go ahead. ओके, मुझे एक सवाल पूछना है. जी. आजकल मैं कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बहुत इंटरनेट पे सर्च कर रही हूँ. आई केम आउट विद फ्रैक्शनल CO2 लेजर थेरेपी. एक्चुअली मेरी बॉडी पर बचपन से ही कुछ जैसे एलर्जी मार्क्स हैं, जैसे बग बाइट्स और या कोई एलर्जी मार्क्स हैं. तो आई केम आउट विद लाइक सर्च के CO2 लेजर ट्रीटमेंट के बारे में, फ्रैक्शनल एक्चुअली. तो मैं उसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ. तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इज़ दैट इफेक्टिव कि अगर कोई अपने 10 या अराउंड 15 ईयर ओल्ड मार्क्स को कराता है ट्रीट with such laser therapy. I have a question back to you, and that is ये marks जो हैं ये face पे हैं या some other areas? नहीं, face पे बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. It's just on my legs and my arms. और legs पे भी सिर्फ knees तक हैं और knees above नहीं है. अच्छा, तो मेरी एक advice है, don't do it. Sorry, I couldn't hear you. जी क्या कह रहे? Don't do it. The fractional CO2 laser would be the wrong thing to do for that. उसका रीज़न ये, एक तो CO2 fractional CO2 laser या most lasers that are for removing marks or lessening marks, you can't remove them, वो face के नीचे काम ज़्यादा नहीं करते. Because the healing properties जो हैं skin की, जो legs पे skin हो या arms पे skin हो versus face पे फ़र्क होती हैं. उस पे अगर आपने fractional CO2 laser किया, जो scars हैं ये और ख़राब हो जाएंगे. नंबर 1. नंबर 2, CO2 लेज़र जो है वो जो हमारा जो स्किन कलर है जो विच इज़ अ लिटिल बिट डार्कर, उस पे वो पिगमेंटेशन ज़्यादा बढ़ा देंगे. सो CO2 लेज़र ऑन द लेग्स फॉर यू वुड बी नॉट रिकमेंडेड. So what would you recommend me with for legs and arms? Well, it's hard to say depending on, you know, अगर post-inflammatory hyperpigmentation है तो sometimes there are certain lightening creams वगैरह that can work. अगर actual scarring है तो फिर scarring को देखना पड़ेगा कि is it उसका extent कितना है कि उसको remove किया जा सकता है surgically.
यू नो या कुछ भी नहीं किया जा सकता. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ मोर थॉरो एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एवेल्युएशन. एंड हमारे डॉक्टर्स का सारा इंफॉर्मेशन हमारे फेसबुक पेज पे मौजूद है. सो इफ दे नीड अ कंसल्टेशन, प्लीज एक दफा अपनी स्क्रीन पे शो कर देंगे फेसबुक लिंक एंड ऑल, बिकॉज मैंने अभी टर्न ऑन करा है. बिल्कुल सायरा, हम कोशिश करेंगे कि अगले ब्रेक के बाद आने के बाद हम उसको शो करते हैं, वरना आप फेसबुक पे भी ढूंढ सकती हैं डॉक्टर्स आपके साथ, उधर भी सारा इन्फॉर्मेशन है. ठीक जी. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच सायरा. नाज़रीन, अभी हुआ है वक्त ब्रेक का. विल बी राइट बैक, डॉक्टर्स आपके साथ. उस वक्त तक जो है हम और ज़रा आपस में ज़रा मिंगलिंग करते हैं. आएगा प्लीज़ ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं. डॉक्टर साहब मेरे सामने